Hello students, today I'm going to start a very interesting and informative chapter regarding solid state. Now as we have learned from 11th standard and 10th standard a basic differentiation of solid, liquid and gases, and from that we accumulate few points about solid, and if we try to define solid, we can say that solid is that state of matter where the particles in solids, which can be an atom, which can be an ion, which can be in molecules, are held together with a very strong intermolecular forces of attraction, because of which they have a rigid structure, they have definite shape, definite volume, high density, and that is the reason which separates them from the other two states, that is liquid state and gaseous state, the high intermolecular force of attraction between the particles. अब ये पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने सोडियम मेटल लिया तो उसमें सोडियम के एटम ही हो गए. It can be an ion. For example, you take a common salt, NaCl solid, it has Na plus Cl minus ions inside. It can be a molecule. For example, ice में H2O molecules है. Solid carbon dioxide which is called as a dry ice, ice cream preservation के लिए काम आता है. वो CO2 के अंदर क्या है? Molecules है. So particle can be molecule, can be atom, can be ion, but they are held together with a very strong intermolecular forces और intramolecular forces. अब ये forces क्या हो सकते हैं? Forces can be covalent forces between two atoms because of sharing. It can be an ionic forces, that is Coulombic force between the ion, that is electrostatic force of attraction in Na plus Cl minus, अभी जो बताया मैंने. It can be a metallic forces. आपने pure metal लिया है तो there is a metallic forces between the positive charge nucleus and the electrons surrounding it. Okay. अच्छा, अगर आपने molecular crystals लिए है like ice तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगा. आपने CO2 लिया है तो there can be a van der Waals dispersion forces मिलेंगे as a intermolecular forces. So ये सारे forces है ना, सारे particles को, particles of a particular solids, उनको ये बहुत strongly held करके रखते हैं. That is why they have a properties, okay, which is altogether different from solid and liquid. Now about the kinetic energy and the movement. Now solids are those because of high intermolecular forces उनके movement restrict होते हैं, तो that is why इनमें movement आपको नहीं देखने मिलेगा like solid, like liquid and gases. अब जैसा गैस की बात करोगे तो गैस के अंदर we have all three kinds of movements like translation, rotational, vibrational. For example, you took a hydrogen molecule. Hydrogen molecule is made up of two hydrogen atoms. अगर वो दो हाइड्रोजन एटम से बना है तो उसमें एक मोशन हो सकता है कि H2 मॉलिक्यूल मूव कर रहा है स्ट्रेट पाथ में और अपने एंगल्स रैंडमली चेंज कर रहा है. दैट काइंड ऑफ अ मोशन इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन मोशन. या तो दो हाइड्रोजन एटम बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूल, बिकॉज ऑफ रिपल्शन एंड अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द ऑपोजिट एटम्स, दे अंडरगो वाइब्रेशन एंड दे ऑल्सो रोटेट एट अ मीन पाथ. तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में रोटेशनल, वाइब्रेशनल और ट्रांसलेशन तीनों मोशंस दिखाई देते हैं. दैट इज वाई दे पोजेस अ वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी इन देम. बट आप अगर सॉलिड्स की बात करोगे, so the intermolecular forces between the solids are so strong, the mass is concentrated in a very smaller volume, their movements are restricted. उनमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक वाइब्रेशन मोशन मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल आपने एक पीस ऑफ वुड लिया, उस पर जोर से नॉक किया तो आपको साउंड मिलेगा. दैट साउंड इज ड्यू टू द वाइब्रेशन, द ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल एट द मीन पोजिशन. सिर्फ उतना ही. क्लियर है? सो दैट इज वाई solids have a very rigid and compact structures. Now this solids, the study of solids, the basic idea of solids आप लोग 11th और 10th में पढ़ चुके हैं. What about this chapter? What we are going to study in this chapter? We are going to study first classification of solids. Second, structure of crystalline solids. Third, we are going to study how the particles, that is atom, molecule, ions, how much percentage of volume they occupy when they form a different shape. Fourth, we are going to study defects in solid. Fifth, we are going to study about electrical property. And sixth is the magnetic property. Clear है? तो ये सब के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करने वाले हैं. तो the first part of this chapter is about classification of solids. अब solids को अगर हम लोग classify करेंगे तो again we came to an idea that solid as of two type, crystalline solid and amorphous solid. Crystalline and amorphous solid.
अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड व्हाट आर अमorphous सॉलिड्स। तो जब हम लोग, मैं जब भी क्लास में किसी को ये क्वेश्चन पूछता हूँ तो मुझे कुछ अलग अलग आंसर्स आते हैं। मैंने ये सुना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दो सॉलिड्स विच हैव वाटर एफ क्रिस्टलाइजेशन, सम सेज दे आर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स। तो ऐसे अलग अलग डिफरेंट डेफिनेशंस आते हैं, बट करेक्ट आंसर भी आते हैं। एंड द करेक्ट आंसर एंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमorphous solid is that crystalline solids are those solids which have definite arrangement of their particles। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, particles आया मतलब दिमाग में atom, molecule, ions कुछ भी आना चाहिए। They have definite arrangement of particles throughout their substance, throughout their body। definite arrangement रहेगा particles का। It means they will possess a definite angles, interfacial angles। They have a sharp melting point, they have sharp edges। Yes, when they are cut they give you a sharp edges। So such type of substances, we have definite arrangement of particles in them, they are called as crystalline solids। पहले ये दिमाग में डालो, सिंपल करते हैं। तो crystalline solids are those solids which have definite arrangement of their particles। I'll give you so many examples in it। Amorphous solid, the word amorphous come from a Greek word amorphe, which means irregular or disordered arrangement। मतलब अरेंजमेंट है बट इरेग्युलर है, शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट है। और क्रिस्टलाइन में लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होता है। मैं आपको स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल एग्जांपल देता हूं समझाने के लिए। ओके, द सिंपल एग्जांपल इज, क्लासरूम में, स्कूल की क्लासरूम में लेक्चर चल रहा है। ओके, एंड व्हेन आई व्यू दैट क्लास फ्रॉम आउटसाइड, व्हाट आई सी, द स्टूडेंट्स आर properly arranged in orderly manner। okay, sitting arrangement जिसको हम लोग बोलते हैं क्लास में। so they have been properly arranged one after the other, बराबर बराबर बराबर। मतलब अगर मैं क्लास में जाऊं और सब के सब प्रेजेंट है तो मुझे एक के पीछे एक इक्वी डिस्टेंस पे, ओके, 2 on 1 बेंच, एक के पीछे एक इक्वी डिस्टेंस पे स्टूडेंट्स मिलेंगे। सो दैट इज अ काइंड ऑफ अ प्रॉपर डेफिनेट अरेंजमेंट, क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट थ्रू आउट द क्लास। ओके, ये समझना जरूरी है। बट सपोज वो लेक्चर ऑफ हो गया एंड देयर इज अ शॉर्ट ब्रेक इन बिटवीन, तो व्हाट विल हैपन? अब मैं क्या देख रहा हूँ क्लास में जाने के बाद कि देयर आर सम रैंडम अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट होगा बट रैंडम, मतलब नोबडी इज अलाउड टू मूव आउट, बट यू कैन मूव इनसाइड द क्लास एंड सिट विथ योर फ्रेंड्स। सो क्या हो गया, मैं फर्स्ट 2 बेंच देखा, वहाँ पर 6 लोग बैठे, 6। फिर नेक्स्ट 2 बेंच पे 4 बैठे हैं, फिर देयर इज अ गैप इन बिटवीन। फिर आगे 2 बेंच के ऊपर देखा, फिर से 5 लोग बैठे हैं, फिर ये साइड पे 4 लोग बैठे। दे आर मेकिंग अ स्मॉल स्मॉल क्लस्टर, ग्रुप्स बना के बैठे हैं। सो वो भी एक अरेंजमेंट है, बट दैट अरेंजमेंट इज नॉट रेगुलर अरेंजमेंट, दैट इज अ इरेगुलर डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट। क्लियर है? सो उस सॉलिड्स को हम लोग अमorphous सॉलिड बोलते हैं, जिनके मेल्टिंग पॉइंट रेंज में होते हैं, शार्प नहीं होते। जब आप उनको कट करोगे तो आपको शार्प एजेस नहीं मिलेंगे। क्लियर है? सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमorphous सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दो सॉलिड्स where there is a regular arrangement of the particles in an orderly manner throughout the system of crystalline solid। Amorphous solid are those where there is a irregular arrangement, मतलब arrangement होता है but irregular arrangement होता है for a short range। That is why we say crystalline solids have a long range forces and amorphous solid have short range forces। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। अगर आप मेटालिक क्रिस्टल्स की बात करो तो जितने सारे प्योर मेटल्स है वो सब क्रिस्टलाइन स्टेट है। आयनिक सॉलिड्स, सॉल्ट्स की बात करोगे तो वो क्रिस्टलाइन स्टेट में आपको मिलेंगे, बहुत सारे सॉल्ट्स मिलेंगे। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स आपको मिलेंगे बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसा मैंने आइस बताया आपको, CO2 बताया, ये सब मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स है। देन वी हैव क्रिस्टल्स इन कोवैलेंट सॉलिड्स लाइक डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब के पास एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, लेकिन वही अरेंजमेंट अमorphous सॉलिड में नहीं होता। उनमें इरेगुलर डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट रहता है, जिसकी वजह से अमorphous सॉलिड्स आर आल्सो कॉल्ड एज सुपर कूल लिक्विड्स। दे हैव अ फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, और उसमें से थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड कॉल्ड एज लैटिस एंड यूनिट सेल। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक क्रिस्टलाइन सॉलिड लिया है, पोलोनियम, ओके, रेडियोएक्टिव मटेरियल।
इसके एटम्स देखो, एटम को मैंने एक स्पीयर के फॉर्म में अरेंज कर रहा हूं, देखो उसके एटम्स मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, लाइक दिस। ये एक दूसरे से दूर नहीं होते, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं ऐसा दूर बता रहा हूँ, वरना एक्चुअली में देखा जाए तो ये सारे एटम्स ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, लाइक दिस, यू नो, दे आर टचिंग ईच अदर। बट जस्ट टू मेक अ टॉपिक सिंपल ना, मैं थोड़ा इनको डिस्टेंस पे बना रहा हूँ, तो आपको इसके अरेंजमेंट समझ में आएंगे। ठीक है, देखो मैं एक अरेंजमेंट बना रहा हूँ इनके। ये अरेंजमेंट देखो ना, इफ आई दीज आर ऑल पोलोनियम एटम, लेकिन अगर मैंने सपोज इनके कॉर्नर्स ज्वाइन किया लाइक दिस, ओके आई लुक दिस आउट, इसको ज्वाइन किया, देखो देखना सेंटर्स इनके ज्वाइन कर रहा हूँ एटम के न्यूक्लियस। वी कंसिडर एटम इन अ फॉर्म ऑफ स्पीयर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, मेक इट ईजी। देखो मैंने हाइपोथेटिकल लाइन्स बनाए, इसे ज्वाइन किए, सी प्रॉपरली, ये ज्वाइन कर रहा हूँ मैं सारे लाइन्स इनको, ओके हाइपोथेटिकली। यहाँ भी मैंने ज्वाइन किया है, देखो इसको यहाँ से ज्वाइन किया, यहाँ से ज्वाइन किया, यहाँ से ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया, see properly, okay? We'll make the concept very simple. ये भी ज्वाइन हो गया इधर पे, यहाँ पर एक एटम बना देता हूँ, ये ज्वाइन कर रहा हूँ, सो ऑन। यहाँ से भी एक्सटेंड हो रहा है, यहाँ से भी एक्सटेंड हो रहा है, यहाँ भी सब एटम्स ही आपको दिखाई दे रहे हैं, लाइक दैट। सो बेसिकली अगर ये देखा जाए तो एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है, हर एक के नीचे एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर, कि ऑल दीज पोलोनियम एटम्स आर अरेंज इन अ प्रॉपरली मैनर। सो दिस क्रिस क्रॉस लाइन्स, ये जो मैं क्रिस क्रॉस लाइन्स बना रहा हूँ ना, टू मेक द एंटायर सिस्टम ऑफ पोलोनियम, अरेंजमेंट ऑफ पोलोनियम इज कॉल्ड एज लैटिस स्ट्रक्चर, ओके। सो ये जो पूरा स्ट्रक्चर जो भी बनेगा यहाँ पर, जो बन रहा है, जो आगे बन सकता है, दैट इज कॉल्ड एज lattice structure, okay? Now if you see properly, in case of this arrangement of polonium atom, अगर मैं सिर्फ ये पार्ट की बात कर रहा हूँ, बराबर इसको ऑब्जर्व करना, सी प्रॉपरली, इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ रेड से, ये देखो, तो आपको एक क्यूब दिखाई देगा इसके अंदर, रेड कलर का एक क्यूब दिखाई दे रहा है। इसके साइड में भी एक क्यूब दिखेगा आपको, अच्छा इसके साइड में भी आप एक क्यूब बना सकते हैं, इसके फ्रंट में भी आप एक क्यूब बना सकते हैं। मतलब पूरे लैटिस के अंदर आपको जो सबसे मिनिमम बेसिक स्ट्रक्चर, रिपीटेटिव स्ट्रक्चर जो रिपीट हो रहा है कंटिन्यूसली, वो स्ट्रक्चर क्यूब है। तो मतलब वो क्यूब बन गया यूनिट सेल। सो दिस इज अ सिंगल यूनिट सेल ऑफ पोलोनियम लैटिस। अब इसको अगर मैं सेपरेट करके बनाऊं तो ये क्यूब आपको ऐसा दिखाई देगा, लाइक दिस। अब इसमें एटम्स कैसा है, देखो ये एक एटम इस कॉर्नर पे है, ये एटम्स को टच कर रहा है, ओके। अभी क्यूब को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं, लिटिल स्मॉल, ओके। तो यहाँ एक एटम आ रहा है और यहाँ एक एटम, देखो ये वाला एटम जो ये फर्स्ट एटम, ये कॉर्नर पे ये दो एटम को टच करता है, फिर उसके बाद नीचे एक एटम आ जाएगा, इसके यहाँ एक एटम आएगा, इसके यहाँ एक एटम आएगा, इसके यहाँ एक एटम। तो आप बोलेंगे सर ऊपर 4 एटम का एक लेयर है, नीचे 4 एटम का एक लेयर है, तो आपको इमेजिन करना, देखो ऊपर एक पूरा लेयर जा रहा है एटम्स का, नीचे एक दूसरा लेयर आ रहा है एटम्स का, उसके बाद नीचे एक तीसरा लेयर आएगा एटम्स का, फिर फोर्थ एंड सो ऑन। देयर विल बी एन नंबर ऑफ लेयर्स जिसमें एटम्स अरेंज है, और जब आप उसमें से एक बेसिक रिपीटेटिव यूनिट निकालोगे तो उसको आप लोग बोलते हो यूनिट सेल। इन केस ऑफ पोलोनियम दिस क्यूब इज अ यूनिट सेल वेयर द एटम्स आर अरेंज एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। तो जब ऐसा अरेंजमेंट हमको दिखाई दे रहा है थ्रू आउट, तो वो सब्सटेंस बन जाता है क्रिस्टलाइन, ठीक है, थ्रू आउट पैटर्न। अभी मैं आपको डायमंड का स्ट्रक्चर बताता हूं। इन केस ऑफ अ डायमंड, इट इज अ 3-dimensional network structure where one carbon atom is attached to 4 more carbon atoms, okay, 3 more carbon atoms with the sp3 hybridized। तो देखो अब ये कार्बन 3 से अटैच हो गया इसके अंदर, फोर्थ वाला कार्बन इधर आ जाएगा, टेट्रावैलेंसी। अब ये कार्बन देखो, ये कार्बन, ये एक कार्बन से अटैच है, ठीक है। नाउ वी हैव वन मोर ईयर, वन मोर ईयर, वन मोर ईयर। तो देखो ये कार्बन भी 4 से अटैच हुआ, ये कार्बन भी देखो एक यहाँ से अटैच है,
सी, ये अटैच हो गया। ये कार्बन देखो एक यहाँ से अटैच है, अच्छा ये भी आगे और 3 से अटैच होते जाएंगे, ये भी आगे 3 से अटैच हो गए। सो यू हैव अ नेटवर्क स्ट्रक्चर, अ कोवैलेंट नेटवर्क 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जिसमें अगर मैं इनके कॉर्नर्स ज्वाइन कर रहा हूँ, सी प्रॉपर्ली, देखो ये ज्वाइन किया इनके कॉर्नर्स, तो आप बोलेंगे सर आई कैन सी अ टेट्राहेड्रल। मिला, हाँ टेट्राहेड्रल है, तो मिला एक काम कर, तो अब ये कॉर्नर ज्वाइन कर, ये कार्बन ले, इसको सेंटर बना, तो इसको सेंटर बनाएगा तो देखो ये ज्वाइन करेगा इधर पे, ये ज्वाइन करेगा इधर पे, ये इससे ज्वाइन है, ये इससे ज्वाइन, ये इससे, सर यहाँ भी एक टेट्राहेड्रल बन रहा है। मैंने बोला हाँ यहाँ भी तेरे को एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिख रहा है, तू कहीं भी ज्वाइन करेगा तो तेरे को एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इन द लैटिस ऑफ एंटायर डायमंड द रेपिटेटिंग यूनिट सेल इज द टेट्राहेड्रल लैटिस, इज अ टेट्राहेड्रल लैटिस जो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है थ्रू आउट द डायमंड। सिमिलरली ये हम लोग ने स्ट्रक्चर 11th में देखा है। ओके, नाउ सिमिलरली अगर ग्रेफाइट लिया तो ग्रेफाइट के अंदर अ कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज अटैच टू 3 मोर कार्बन एटम। तो देखो एक इधर से अटैच है, एक यहाँ से अटैच होगा, यहाँ से 3, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। ये sp3 है जिसमें चारों इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। फिर ये कार्बन भी 3 से अटैच होगा, फिर ये कार्बन अगेन 3 से अटैच होगा, फिर ये भी कार्बन होगा जो 3 से अटैच है। तो यहाँ पर देख लो 1 2 and 3, 3 से अटैच हो गया। फिर ये कार्बन 1 2, फिर यहाँ पर एक अटैचमेंट आएगा 3, फिर सिमिलरली यहाँ पर भी एक। अब बराबर देखोगे तो क्या होते जा रहा है, यहाँ पर आपको हेक्सागोनल रिंग मिल रहा है। सो दिस इज हेक्सागोनल रिंग ऑफ ग्रेफाइट, अ प्रॉपर डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ ग्रेफाइट। सी प्रॉपरली, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ ग्रेफाइट मिल रहा है। यहाँ पर भी देखोगे तो ग्रेफाइट का प्रॉपर अरेंजमेंट है, हेक्सागोनल अरेंजमेंट, ठीक है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ हेक्सागोनल अरेंजमेंट एंड ईच कार्बन एटम हैज 1 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, बट ये एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये डायमंड 3 डायमेंशनल है। अब ये ग्रेफाइट का एक प्लेन हो गया, अभी इसी के नीचे ग्रेफाइट का दूसरा हेक्सागोनल प्लेन आएगा। सो दिस इज द नेक्स्ट प्लेन ऑफ ग्रेफाइट, क्लियर है, ये नेक्स्ट प्लेन हो गया इसी के नीचे एग्जैक्टली। इसमें भी सारे के सारे हेक्सागोनल रिंग ही है एंड सो ऑन। तो अब एक प्लेन दूसरे प्लेन से अटैच होगा बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक प्लेन दूसरे प्लेन के ऊपर आएगा, मतलब देयर इज अ हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, फिर उसके नीचे एक और एक हेक्सागोनल प्लेन, फिर एक और एक हेक्सागोनल प्लेन। तो ऐसा करते 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 देयर आर लॉट ऑफ हेक्सागोनल प्लेन अरेंज्ड इन ग्रेफाइट, अ 2D स्ट्रक्चर विच इज सॉफ्ट एंड डायमंड। इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट है, 3400 के ऊपर है। इट इज लेस, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये सॉफ्ट ग्रीसी मटेरियल जैसा हमको दिखता है ग्रेफाइट। यहाँ पर इनके बीच के जो लेयर्स के डिस्टेंस है वो 340 पिकोमीटर के है, यहाँ पर 154 पिकोमीटर है, मतलब एक टेट्राहेड्रल से दूसरा टेट्राहेड्रल लैटिस 154 पिकोमीटर, बहुत कम डिस्टेंस है, इनमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, क्लियर है। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम है तो ये सॉफ्ट हो गया, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। बट देखा जाए तो ये सारे स्ट्रक्चर में रिपीटिंग क्या है, यूनिट सेल्स, डेफिनेट पैटर्न में, टेट्राहेड्रल, हेक्सागोनल, क्यूबॉइडल। सो ये सब स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑल दी स्ट्रक्चर दे हैव अ डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल थ्रू आउट द लैटिस। वो पार्टिकल एटम होने दो, मॉलिक्यूल होने दो, आयन होने दो, कुछ भी होने दो। अब आइस की बात करेंगे हम लोग। इन केस ऑफ आइस, H2O मॉलिक्यूल, जब हम वाटर को फ्रीज कर रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द H2O मॉलिक्यूल, ऑफ वी शेप मॉलिक्यूल। ये दूसरा H2O मॉलिक्यूल आ गया वी शेप, ठीक है। एक तीसरा H2O मॉलिक्यूल आ गया वी शेप। तो क्या होगा, ये देखो यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है, अब ये H2O मॉलिक्यूल भी आगे जाके 2 और हाइड्रोजन से अटैच हो जाएगा, HOH, यहाँ से भी अटैच होगा HOH। तो अगर बराबर देखोगे तो आपको अगेन एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिल रहा है, रिपीटेटिव। तो आइस में भी वाटर के टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स है जो अरेंज है, रेपिटेटिव अरेंजमेंट होगा, हैविंग अ बेसिक यूनिट सेल्स। सो सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स वेयर एटम, molecules, ions यानी particles, they are arranged in an ordered manner throughout the lattice, पूरे lattice में, throughout the lattice, that is called as crystalline compounds, okay। and amorphous crystalline compound plus जो repeating units होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, unit cell बोलते हैं। and amorphous क्या होगा, they are those which have short range, arrangement होगा but short range के लिए होगा, क्लियर है।
तो उसमें शॉर्ट रेंज फोर्सेस हो गए, जिसके वजह से दे डू नॉट पोजेस अ डेफिनेट शेप व्हेन दे आर बीन कट। जब उसको कट करोगे तो शार्प एजेस नहीं मिलेगा, रेंज में मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 100 है, सो 99.5 पे भी वो सॉलिड ही है। जैसा टेम्परेचर 100 पे हुआ, एंटायर, अगर वो प्योर क्रिस्टलाइन है तो एंटायर सब्सटेंस विल कन्वर्ट इनटू अ लिक्विड, क्योंकि लिक्विड करने में आप सॉलिड्स के बॉन्ड ब्रेक करते हो, तब जाके वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। मतलब सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं उसके जब बॉन्ड ब्रेक करोगे तब वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो वो बॉन्ड साइमल्टेनियसली ओपन हो जाते हैं, दे ब्रेक इट साइमल्टेनियसली थ्रू आउट द लैटिस, दैट इज वाई दे हैव अ वेरी शार्प मेल्टिंग पॉइंट। मतलब जो टेम्परेचर लिखा है और अगर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस प्योर स्टेट में है तो वही टेम्परेचर पे पूरा एक साथ लिक्विड बनेगा। लेकिन अमोफस ऐसा नहीं होता। अमोफस में क्लस्टर्स में अरेंजमेंट होते हैं, कुछ क्लस्टर्स में अरेंजमेंट के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, कुछ क्लस्टर के अरेंजमेंट में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगे, कुछ वीक होंगे। तो अगर वो 100 दिया है तो 100 में नहीं होगा, वो रेंज में होगा कि सॉलिड्स है उसको मेल्ट कर रहे हैं, 100 दिया है बट 99.5 पे थोड़ा लिक्विड है बाकी सॉलिड है। 100 पे आने के बाद बहुत सारा लिक्विड बन गया, थोड़ा सॉलिड है, 100.5 पे पूरा सॉलिड हो गया। तो मैं आपको बोलूँगा द रेंज ऑफ अमोफस सॉलिड इज 99.5 टू 100.5, इसके बीच में मेल्ट होना चाहिए। लेकिन क्रिस्टलाइन बोलूँगा तो एग्जैक्ट इसी टेम्परेचर पे होना चाहिए, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स दे हैव अ लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, they have sharp melting point, they have sharp edges when then cut into pieces, clear है। इनके जो अरेंजमेंट होते हैं उसके वजह से एक लैटिस स्ट्रक्चर मिलता है जिसमें हमेशा एक रेपिटेटिव यूनिट होता है, उस रिपीटिंग यूनिट को हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल्स। थोड़े और फीचर्स देखते हैं इनके, ओके। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर फीचर्स अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमोफस सॉलिड्स। एक्सप्लेनेशन सुनना बहुत जरूरी है इसमें। अबाउट क्रिस्टलाइन एंड अमोफस सॉलिड्स, now crystalline compounds, they possess, I'm talking about ionic crystals, okay, like common salt and NaCl, KCl, all those crystals, they are also crystalline compounds. Crystalline compound, they possess a property called as anisotropy. Also called as anisotropic crystalline. And amorphous compound are isotropic. Now what is this anisotropy? Anisotropy का मतलब क्या होता है? Anisotropy का सिंपल मीनिंग ये होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक थर्मल कंडक्टिविटी, लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑल दोस फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हेन दे आर मेजर्ड फ्रॉम डिफरेंट एंगल विल फाउंड टू बी डिफरेंट। क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स में जब आप फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करते हो, ठीक है, एंगल्स चेंज कर करके, तो वो प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाती है फॉर अ सेम सॉलिड। फॉर एग्जांपल NaCl, अभी NaCl की बात करोगे तो NaCl, ये उसका अरेंजमेंट बताता हूँ फ्रॉम द टॉप व्यू। Na+ होता है, फिर एक Cl- होता है, फिर एक Na+ होता है, फिर Cl-, Na+, Cl-, ओके। फिर उसके बाद में सपोज मैंने यहाँ पर एक Cl- लिया है या Cl- लिया है, या दे विल बी एन Na+, या दे विल बी एन Na+, या दे विल बी एन Na+, सेंटर में एक Cl- आ जाएगा, फिर Cl- आएगा, या दे विल बी एन Na+, ओके, देन Na+, Cl- ions, Na+ ions, then you have a Cl-, so they have a regular arrangement. See, this is the arrangement. अब सपोज मैंने इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, NaCl का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट किया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ऐसा, डायगनली कैलकुलेट कर रहे हैं। सपोज मैंने डायगनली ऐसा कैलकुलेट किया, इसके अंदर Cl- को 4 कॉर्नर्स बना के मैंने ऐसा कुछ निकाला है स्ट्रक्चर, ओके, और ऐसा कैलकुलेट किया। तो दोनों जगह पे जब आप कैलकुलेट करोगे ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो यहाँ से आएगा और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ से आएगा वो दोनों सेम नहीं होगा, इट विल बी डिफरेंट अनलेस एंड अनटिल वो क्रिस्टल मोनो एटॉमिक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप आयन का क्रिस्टल लो जिसमें सिर्फ Fe है, तो आयन कैसा अरेंज है? Fe है तो Fe एक क्यूबॉइडल जैसा अरेंज रहता है जिसमें Fe के एटम्स कॉर्नर पे रहते हैं, दिस इज Fe,
और एक एटम सेंटर में, बॉडी सेंटर्ड, बीच में रहता है, पूरे क्रिस्टल के क्यूब के बीच में रहता है। फिर यहाँ पर Fe का रेपिटेशन आ जाएगा, यहाँ पर हो गए उसके एटम्स, ठीक है। देखो ये एटम रिपीट हो रहे, एक सेंटर में आएगा। तो अभी इसके अंदर ये एक मोनो एटॉमिक क्रिस्टल है। मोनो एटॉमिक क्रिस्टल में जब आप फिजिकल प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हो तो वो सेम ही आता है। तो मोनो एटॉमिक क्रिस्टल जो है वो एनाइजोट्रोपिक नहीं होते, बट डायटॉमिक क्रिस्टल्स, ट्राइटॉमिक क्रिस्टल्स जो होंगे जिसमें एक से ज़्यादा एटम है क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के, वो एनाइजोट्रोपिक होते हैं। एनाइजोट्रोपिक मतलब जैसा आपने डायरेक्शन चेंज किया फिजिकल प्रॉपर्टी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। बट वही चीज़ अमोफस में नहीं होती। अमोफस आइसोट्रोपिक, कोई भी एंगल से आप उसको चेक करो, उसका जो वैल्यूज़ है इट इज़ फाउंड टू बी सेम। तो याद रखने का, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंजेस विद अ चेंज इन एंगल। तो ये किसका प्रॉपर्टी हुआ? क्रिस्टलाइन का। कौन से क्रिस्टलाइन का हुआ? जो डायटोमिक ट्राइटोमिक है। अमोफस और आइसोट्रोपिक मतलब कोई भी जगह से उसका अगर आप चेक करोगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो वो आपको सेम ही मिलेगी। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ और इजीली समझने के लिए। सपोज आई टुक 40 स्टूडेंट्स, मैंने 10-10 का रो बनाया। फर्स्ट रो में 10 स्टूडेंट, इक्वी डिस्टेंस। सेकेंड रो, ठीक है, 1 मीटर, सेकेंड रो मैंने रख लिया 1 फीट पे, 10 स्टूडेंट्स। थर्ड रो 1 फीट पे डिफरेंस डिस्टेंस, देन फोर्थ रो। ऐसे 4 रो हम लोगों ने बना दिए। ईच रो हैज़ 10-10 स्टूडेंट्स। अगर मैं फर्स्ट रो को पुश करूंगा तो फर्स्ट रो के ही स्टूडेंट गिरेंगे, और अगर डायगनली पुश करूंगा तो डायगनली स्टूडेंट गिरेंगे, बाकी सब अलग रहेंगे, वो गिरने वाले नहीं है। बिकॉज दिस इज विच अरेंजमेंट? क्रिस्टलाइन। बट सपोज हम लोगों ने इन 40 स्टूडेंट्स को, समझ गया ना, आप फर्स्ट रो में पुश कर रहे हो तो फर्स्ट रो ही गिर रही है, बाकी कुछ रो को कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन आप अगर डायगनली पुश कर रहे हो तो डायगनली गिर रहे हैं, बाकी सब कुछ को कुछ नहीं हो रहा है। एवरीवन इज स्टेडी, सिर्फ डायगनली लोग गिर रहे हैं। बट सपोज मैंने वही 40 स्टूडेंट को क्लस्टर में खड़ा किया, भीड़, क्राउड क्लस्टर में। ओके, सब भीड़ बना के खड़े हो गए। अब भीड़ में क्या होता है, यू पुश वन, आप किसी एक को भी पुश करोगे ना तो रैंडमली फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होगा, सब गिरना चालू हो जाएंगे एक साथ। सो दैट इज अ काइंड ऑफ अमोफस अरेंजमेंट। और जो मैंने पहले अरेंजमेंट बताया इक्विडिस्टेंट, वो क्रिस्टलाइन था। इसके लिए क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट में एनाइजोट्रोपी मिलता है, अमोफस में नहीं मिलता। अब सेम चीज ग्लास और आइस में देख लो। Ice, a piece of ice, a big block of ice. If you take a spike and cut it from the center, you will get two separate. और शार्प चीज से इसको कट करोगे तो आपको आइस में शार्प एज मिलेंगे, प्रिकी फील होगा। ओके, अगर आइस को हम लोग ने प्रॉपरली कट किया तो शार्प एज मिलते हैं, प्रिकी फील होता है। इवन अगर ज़्यादा शार्प होगा तो वो आपको स्किन के थ्रू पेनिट्रेट भी हो जाएगा, ब्लीड भी हो जाएगा। दैट इज आइस। ओके, तो इट हैज़ शार्प एजेस एक ही साथ, मतलब जहाँ पर आप वो आइस का ब्लॉक है आपने सेंटर में उसको कट किया, 2 पीस हो जाएंगे। ओके, लाइक दैट। आइस की मैं बात कर रहा हूँ। ग्लास को देखो, ग्लास, ओके, ग्लास को अगर जोर से आप हिट करोगे, सपोज यू टेक अ बॉल, यू हिट इट, तो ग्लास जो है वो शार्प एजेस में कट नहीं हो रहा है, वो उसका फोर्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और जब ग्लास ब्रेक होता है, मतलब पीस ऑफ आइस को अगर आप ब्रेक करोगे तो वो शार्प एजेस में ब्रेक होता है और प्रिकी। लेकिन अब ग्लास को ब्रेक करोगे तो रैंडमली हर डायरेक्शन में वो ब्रेक हो जाएगा। सो बिकॉज वाई? बिकॉज ग्लास इज अ काइंड ऑफ अमोफस लिक्विड। उसमें जो अरेंजमेंट होते हैं ग्लास के अंदर वो शॉर्ट रेंज होते हैं। इसके लिए आपको एक और एक पॉइंट बताता हूँ ग्लास से रिलेटेड। जो ओल्ड बिल्डिंग्स होती है ना, आफ्टर फ्यू ईयर्स अगर विंडो पेन्स, जो ग्लासेस विंडोज पे होते हैं, अगर वो ग्लास को हम लोग चेक करेंगे बहुत सालों बाद, तो ग्लास का जो लोअर पार्ट है वो थिक हो जाता है और अपर पार्ट थिन हो जाता है। क्यों ऐसा? और वो देखने को कैसा मिलता है कि आफ्टर फ्यू इयर्स बिकॉज ऑफ अ हेवी विंड अपर पार्ट ब्रेक हो जाता है, क्रैक हो जाता है ग्लास का, बट लोअर पार्ट थिक रहता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि ग्लास के अंदर जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, दैट इज इरेग्युलर। सो व्हेन देयर इज अ हाई टेम्परेचर, व्हेन द ग्लास इज एक्सपोज टू सन, हाई रेडिएशंस, तो जो स्मॉल स्मॉल क्लस्टर होते हैं ग्लास के, सिलिका के, सोडियम सिलिकेट एंड ऑल, इट विल मेल्ट एंड इट विल स्लोली कम डाउन टू द बॉटम थ्रू आउट द ईयर। तो मतलब ग्लास क्या हो रहा है? फ्लूइड प्रॉपर्टी बता रहा है थ्रू आउट द ईयर। सिमिलरली विद द प्लास्टिक टॉयज जो हो गए, ओके, आफ्टर सर्टेन ईयर्स, ओके, अगर आपने उसको ऐसा हैंग करके रख दिया है प्लास्टिक टॉयज को, रेडिएशंस में हीट प्रोवाइड कर रहे हो, तो लोअर पार्ट उसका थिक हो जाता है और अपर पार्ट थिन हो जाता है। उसका रीज़न क्या हो गया? अगेन प्लास्टिक
एक अमरफस है, ग्लास जैसा अमरफस है। तो ग्लास में क्या हो रहा था कि अपर पार्ट के जितने भी लेयर थे, जो स्मॉल स्मॉल क्लस्टर्स थे सिलिका के, वो मेल्ट होके लोअर पे जाने लगे थ्रू आउट द ईयर। जब वो मेल्ट होके लोअर पे जाने लगे तो लोअर पार्ट थिक हो गया और अपर पार्ट थिन हो गया। तो ग्लास, प्लास्टिक, रबर, इन सब के पास में फ्लूइड प्रॉपर्टी है, फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी है, जो टेम्परेचर कंट्रोल है। क्लियर है? तो इससे हमको क्या मालूम पड़ता है कि ग्लास, प्लास्टिक, रबर और दीज आर amorphous solid and also called as super cool liquids because they have a fluidity property. ठीक है? So keep this in mind कि amorphous compounds are super cool liquids. They show the property of fluidity with respect to temperature. Example आप ग्लास का याद रखना कि विंडो पेन्स जो होती है उसके अंदर ग्लास का जो लोअर पार्ट होता है वो थिक हो जाता है, अपर पार्ट थिन होता है बहुत सालों बाद, बिकॉज अपर पार्ट में से जो क्लस्टर्स होते हैं सिलिका के छोटे छोटे इरेगुलर अरेंजमेंट, वो मेल्ट होकर नीचे जा सकते हैं। ठीक है, फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी। दूसरी बात, क्या हम किसी अमोफस कंपाउंड को क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉर्ड्स इज मेड अप ऑफ सिलिका। ओके, SiO4 का अरेंजमेंट है उसके अंदर, सिलिका का अरेंजमेंट SiO4। तो अरेंजमेंट कैसा है? द अरेंजमेंट इज वेरी स्टैंडर्ड। सी, टेट्राहेड्रल टाइप ऑफ अरेंजमेंट, मतलब यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है सिलिका के SiO4 के, एक ऑक्सीजन बाहर की तरफ आ रहा है या सपोज अंदर जा रहा है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। तो ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट जो आपको रिंग फॉर्म में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इट्स अ काइंड ऑफ अ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। एंड सो ऑन। तो यहाँ से भी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट निकलेगा ग्लास का सिर्फ। तो ये सिलिकॉन है ना, ऑक्सीजन आर बीन अटैच्ड। ठीक है, मैं आपको ये इसके अंदर एक्सप्लेनेशन में बता रहा हूँ कि दे हैव अ स्टैंडर्ड टेट्राहेड्रल टाइप ऑफ अरेंजमेंट सिलिका का। क्वार्ट्ज का ये क्रिस्टलाइन है, बट जब आप इसको हीट करते हो, यू हीट इट, जब आप इसको हीट करोगे तो ये मेल्टिंग स्टेट पे आएगा, मोल्टन स्टेट पे आएगा। मोल्टन स्टेट पे आने के बाद इसको सडन कूलिंग करो, फ्रीजिंग कर दो, सडन, स्लोली नहीं, फास्ट कूलिंग कर दो, टेम्परेचर बहुत कम कर दो। तो व्हाट विल हैपन, जैसे आप इसको मेल्ट करते जाओगे, हीट करते जाओगे, ये सब बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक होते जाएंगे। ब्रेक होने के बाद में ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। दूर जाने के बाद आपने इसको सडन फ्रीज कर दिया, तो अब कैसा होगा? ये है जो आपको रिंग दिखाई दे रहा है, ये ऐसा नहीं दिखेगा। द अरेंजमेंट विल बी नॉट रेगुलर। सी, यहाँ पर एक ये सिलिका हो गया, यहाँ पर एक ऑक्सीजन हो गया अटैच टू दिस सिलिका, वो भी अटैच्ड हुआ। फिर एक रिंग जो है वो पूरी ओपन हो चुकी है, तो ये सिलिका से अटैच्ड है, ये सिलिका है। इट इज़ बीन सिलिकॉन इज अटैच टू ऑक्सीजन ईयर, ये ऑक्सीजन जाके किसी और सिलिका से अटैच हो रहा है। सो देर इज़ अ काइंड ऑफ अ इरेग्युलर अरेंजमेंट। दिस इरेग्युलर अरेंजमेंट गिव रेस टू अ अमोफस कॉर्ड्स, अमोफस ग्लास बन गया ये। तो हम लोग क्रिस्टलाइन कंपाउंड को अमोफस कंपाउंड में, इरेग्युलर अरेंजमेंट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हीटिंग अ क्रिस्टलाइन कंपाउंड। जब वो मेल्टिंग स्टेट पे आएगा उसको सडन कूलिंग कर दो। ठीक है, अच्छा, अमोफस को क्रिस्टलाइन में कैसा कन्वर्ट करोगे? अमोफस कंपाउंड को जब आप मेल्ट करने जाओगे, हीट करने जाओगे, हीट इट, देन डू स्लोली कूल इट स्लोली, एनेलिंग प्रोसेस बोलते हैं। यू डू इट स्लोली, दैट इज कॉल्ड एज एनेलिंग प्रोसेस। सो व्हेन यू डू स्लो कूलिंग टू अ मेल्ट ऑफ अमोफस कंपाउंड, यू डू अ स्लो कूलिंग, तो आहिस्ते आहिस्ते वो उसके क्रिस्टलाइन नेचर में आ जाता है। तो अगर क्रिस्टलाइन से अमोफस में कन्वर्ट करना है तो मेल्ट करके सडन कूलिंग करो, और अमोफस से क्रिस्टलाइन में करना है तो मेल्ट करके डू स्लो कूलिंग। ठीक है, ये बात दिमाग में रखने का इसके अंदर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ बेसिक डिफरेंस। बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमोफस सॉलिड्स। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अमोफस सॉलिड्स। तो सबसे पहली बात इसमें यह है कि दे हैव अ लॉन्ग रेंज फोर्सेस। यहाँ पर आपको
शॉर्ट रेंज फोर्सेस मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। नाउ दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प एजेस व्हेन दे हैव बीन क्लीव्ड। यहाँ पर नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, नो शार्प एजेस, मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बेसिकली एक रेंज में होता है। ये पार्ट समझना ज़रूरी है इसके अंदर, ओके। नाउ दे हैव डेफिनेट दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड, दे हैव अ डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन हम लोग मेल्टिंग को भी बोलते हैं, डेफिनेट रहेगा इनका, ओके। दिस इज इनडेफिनेट, तो indefinite heat of fusion, plus they have regular arrangement, sharp melting point, plus there is a sudden change in the volume when they are melt, there is no sudden, मतलब जब आप इसको हीट करोगे ना तो there will be a sudden change in the volume। मैंने आपको बोला था कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इनका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, there is sudden change in the volume when being heated, there will be no sudden change in the volume when they have been heated। This is also one of the point but comes into the melting of the crystalline compound। फिर उसके बाद में these compounds are anisotrophic, बट कौन से क्रिस्टल्स की बात करता हूँ मैं, डायटोमिक ट्राइटोमिक क्रिस्टल्स, नॉट अबाउट प्योर मेटालिक फॉर्म, ओके, नॉट प्योर मेटालिक फॉर्म, प्योर मेटल लाइक कॉपर, Fe, सोडियम एक्सेट्रा, उनको छोड़ के बाकी वो एनाइजोट्रोपिक होते हैं। एनाइजोट्रोपिक का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट डायरेक्शन, different direction, different physical properties, okay। And in case of amorphous compound they are isotropic। Fifth, they are true solids, crystallines because of regular arrangement। इसको हम लोग बोल सकते हैं pseudo solids or also called as supercooled लिक्विड्स। आपको याद होगा मैंने बताया था बिकॉज ऑफ द फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी, ग्लास का एग्जाम्पल दिया था कि लोअर पार्ट ऑफ द ग्लास थिक हो जाता है, अपर पार्ट थिन हो जाता है, तो दे हैव सूडो सॉलिड्स और ऑल्सो कॉल्ड एज अ सुपर कूल लिक्विड्स, ओके। नाउ दे हैव अ सिमेट्री इन देम, तो वी कैन राइट डाउन दे हैव सिमेट्री, अब लिख सकते हैं नो प्रॉपर सिमेट्री throughout, okay। Next point you can write down, they have interfacial angles, okay। इसमें no interfacial angles, इसमें angles मिलेंगे, क्यों angles मिलेंगे, because of the proper arrangement of the particles। वो चीज़ हम लोगों को यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है इस केस के अंदर, ओके। नाउ विद रिस्पेक्ट टू दिस डिफ्रेंसिएशन हम लोग कुछ और पॉइंट भी ऐड कर दें, वो पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट है थोड़ा समझने के लिए। अ वर्ड कॉल्ड एज आइसोमॉर्फिज्म, आपने ये वर्ड सुना आइसोमॉर्फिज्म, तो आइसोमॉर्फिज्म एक वर्ड होता है और एक होता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आइसोमॉर्फिज्म, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म मीन्स के कंपाउंड्स विच हैव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जिनके क्रिस्टलाइन फॉर्म सेम होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वर्ड है आइसोमॉर्फिज्म। What is isomorphism? Isomorphism is that property where a molecule have a same crystal structure, okay। So मैं लिख सकता हूँ compounds with the same crystal structure are isomorphous, same crystal structure। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख लिया CaCO3 प्लस NaNO3, ये दोनों कंपाउंड देखो डिफरेंट है बट दोनों के क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है, मतलब अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स
विल बी सेम इन दैट केस। अच्छा, फिर एक एग्जांपल लेता हूँ, K2SO4 एंड K2 सेलेनियम SeO4, पोटेशियम सल्फेट एंड पोटेशियम सेलेनेट, दोनों के क्रिस्टल स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम है। और एक पॉइंट और नोट करने जैसा है कि कैल्शियम कार्बोनेट में एक कैल्शियम, एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन है, 1:1:3, और NaNO3 में एक सोडियम, एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन है, 1:1:3। तो हमेशा ये देखा गया है कि जो कंपाउंड आइसोमॉर्फस होते हैं, जिनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होते हैं, उनके रेशियो ऑफ एटम्स भी सेम होते हैं। अब K2SO4 is 2:1:4, K2Se4 is 2:1:4। तो देखो इसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है तो उनके रेशियो ऑफ एटम्स भी सेम हो गए। लेकिन बट यू नीड टू रिमेंबर दो सब्सटेंस विच आर आइसोमॉर्फस, दे हैव सेम रेशियो ऑफ एटम्स, बट it is not necessary कि if two compounds have same ratio of atoms they will be isomorphous, like NaCl KCl सेम है बट उनमें कहीं ना क्रिस्टल डिफरेंस है, सो हम उसको आइसोमॉर्फस नहीं बोल सकते। तो आइसोमॉर्फस होगा तो उनके रेशियो ऑफ एटम सेम होंगे, बट ये ज़रूरी नहीं है कि दो कंपाउंड के रेशियो ऑफ एटम सेम है तो वो आइसोमॉर्फस होते हैं। पहले ये दिमाग में रखो, दैट इज कॉल्ड एज आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है ना, आइसोमॉर्फिज्म is basically a phenomena where the compounds with same crystal structure होना चाहिए। ओके उनके रेशियो भी क्या होते हैं, सेम। अच्छा, एक होता है polymorphous compounds। now what is polymorphous? polymorphism क्या होता है? polymorphism ये होता है जब एक ही सब्सटेंस के दो अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म निकले, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट कैल्साइट भी है और एगेनाइट भी है, तो दो डिफरेंट फॉर्म में है। सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर, दो डिफरेंट फॉर्म हो गया। कार्बन में डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिनिस्टर फिलिरीन, कार्बन, ग्रेफाइट, फिलिरीन, तीनों क्रिस्टलाइन फॉर्म है, तीनों कार्बन से ही बने हैं, तो वो पॉलीमॉर्फस हो गए। ठीक है, बट पॉलीमॉर्फस को एलोट्रोपी में कैसा दिमाग में डालेंगे आप याद रखना। देखो, इन केस ऑफ कार्बन वी हैव डायमंड, ग्रेफाइट, फिलिरीन, लैम्प ब्लैक, चारकोल ब्लैक। ठीक है, ना ये लैम्प ब्लैक, चारकोल ब्लैक, एनिमल ब्लैक, ये सब चीज़ें अमर्फस फॉर्म है कार्बन की। ठीक है, डायमंड, ग्रेफाइट, फिलिरीन, ये सब क्रिस्टलाइन फॉर्म है, तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म को हम लोग बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फस ऑफ कार्बन। ओके, सो पॉलीमॉर्फस ऑफ कार्बन या पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, अ सब्सटेंस विच हैव टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म। ये हम लोगों को दिमाग में रखने का, टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म होना चाहिए उसके अंदर, सो वो पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। ठीक है, तो याद रखने का। वाइल एलोट्रोपी क्या होता है, सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर, बट उसमें जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होंगे उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीमॉर्फस। जैसे कार्बन के अंदर मैंने आपको बताया, कार्बन कैन बी डायमंड, कार्बन कैन बी ग्रेफाइट, कार्बन कैन बी फिलिरीन, अ कार्बन कैन बी अ लैम्प ब्लैक, कैन बी अ चारकोल ब्लैक। तो ये जो है ये इसके अमर्फस फॉर्म है, और ये सब जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म है। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म को हम लोग बोलेंगे पॉलीमॉर्फस फॉर्म, और ये सारे फॉर्म्स को हम लोग बोलते हैं एलोट्रोपी। तो एलोट्रोपी सब फॉर्म हो गए, लेकिन जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो पॉलीमॉर्फस हुआ। ओके, और आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, दो सब्सटेंस जिनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आइसोमॉर्फिज्म क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है और एनाइसोट्रोपी क्या है। एनाइसोट्रोपी क्या होता है, वेयर यू चेक द फिजिकल प्रॉपर्टी विद डिफरेंट एंगल, इट विल बी डिफरेंट फॉर डायटोमिक ट्राइटोमिक क्रिस्टल्स, नॉट फॉर प्योर फॉर्म। इसमें नहीं होता बिकॉज उसमें सारे एक ही एटम्स होते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म मतलब दो कंपाउंड जिनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है, और उनके अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है तो उनके रेशियो भी सेम आएंगे, बट ये जरूरी नहीं कि अगर उनके रेशियो सेम आ रहे तो वो आइसोमॉर्फस है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि एक ही एलिमेंट लिया, याद रखने का मोनोक्लिनिक रोम्बिक सल्फर, याद रखने का कार्बन के बहुत सारे एलोट्रोप्स, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्साइट फॉर्म में है, एगेनाइट फॉर्म में भी है, मतलब एक ही कंपाउंड है बट दो अलग फॉर्म में है, और दोनों फॉर्म क्रिस्टलाइन है, तो वो पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब कार्बन के अंदर 5 है, वापस से मैंने आपको बताया 5 से 6 क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म है, जिसमें डायमंड है, ग्रेफाइट है, फिलिरीन है, लैम्प ब्लैक, चारकोल ब्लैक, एनिमल ब्लैक। तो ये सब जितना भी चीज़ रहेगा जो एनिमल से बन रहा है, उसके बोन से बन रहा है, वुड से बन रहा है, जो चारकोल ब्लैक बन रहा है, ये सब अमर्फस फॉर्म है। तो अमर्फस फॉर्म को हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म में नहीं लेते। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स
वेयर अ सब्सटेंस या एलिमेंट और सब्सटेंस हैज टू और मोर डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म। ये याद रखने का, ठीक है। एक ही सब्सटेंस का, एक ही एलिमेंट का दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म हुआ तो उसको हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। सो दिस इज द बेसिक आइडिया जो अभी मैंने पढ़ा है इस लेक्चर के अंदर। इट इज़ ऑल अबाउट द डिफ्रेंसिएशन बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमorphous सॉलिड्स और उनकी क्या बेसिक प्रॉपर्टीज होती है। सो यू मेक अ नोट ऑफ इट जस्ट फॉर द रिमेम्बरेंस। नेक्स्ट लेक्चर जो इसका होगा दैट विल बी द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को आप कौन से डिफरेंट टाइप में क्लासीफाई कर सकते हो। ओके देन, बाय।